Welcome, my dear students, in this English online class. Today, we will study a new chapter, that is chapter number 3, and the name of the chapter is Was It a Dream? ये क्या एक सपना था? Okay, so dear students, have you seen any time dream? Dream means ख्वाब, सपना. Okay, तो आपने कभी सपना देखे हो क्या? When your dream become true, हाउ डू यू फील? जब आपके सपने सच हो जाते हैं तो आप कैसे फील करते हो? आपको कैसा लगता है? डू यू फील वेरी बैड? नो? डू यू फील वेरी गुड, हैप्पी? ओके, यस. व्हेन आवर ड्रीम बिकम ट्रू, दैट टाइम वी फील गुड. यस. ओके, मेनी टाइम्स ऑफ ड्रीम्स आर देयर. कभी हम ड्रीम डर के ड्रीम भी देखते हैं, है ना? कभी अच्छे अच्छे ड्रीम भी देखते हैं. ये सुनो, तो this chapter is related to a dream. So who had seen this dream and what was that things we will come to know after reading the chapter. But for that, what you have to do? You have to listen this video very carefully with understanding. Okay, dear? Okay, so let's study. But before going to read the chapter, let's understand what is saying the warm up. See, here is asking that have you ever gone fishing or seen people catch fish? अपने कभी फिशिंग करने के लिए गए हो रिवर में या पॉन्ड में, अदरवाइज पीपल को देखे हो फिश पकड़ने के लिए. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट योर एक्सपीरियंस. नाउ यू आर in not means you are not the school, you do not have partner, but with your family members, with your cousins, means grandparents, you can discuss about it. Fishing can be a very relaxing activity. Here are pictures of some things you might need for fishing. Talk to your partner about what they might be used for. See, here are 4 pictures that you need for fishing, like fishing rod, bat, hook and bobbers. फिशिंग रॉड जिसमें झील में आप फेंकते हो, बैट मीन्स चारा, ओके, फिश को कुछ खाने के लिए देना, फिर हुक में जिसमें फिश पकड़ फंस जाते हैं, फिर बबर्स. ओके डियर, नाउ लेट्स रीड द chapter. Okay, you put your first finger on the first word, and whenever you feel that new words or difficulty word for you, you can mark it with pencil and note down in your copy. Okay, so let's start. Rita gathered flowers in the woods while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod. In this para is saying one of girl, her name was Rita. She gathered some flowers from wood. Woods means झाड़ी में, मीन्स जहाँ पे फुल ऑफ ट्रीज रहते हैं, जंगल जैसे. ओके, एंड वाइल हर ब्रदर who was her brother, what was the name of Rita's brother? Na, Frank. He was sitting by the stream with his fishing rod. Stream means a small river. Holding her bunch of flowers, she walked to the place where Frank was sitting. So she held some of the flowers and walked where her brother was sitting. Do stop fishing for a while and play with me, Frank. Aren't you tired of sitting still? Rita asked to her brother that Frank, do stop fishing. Fishing बंद करो and now you play with me. Oh, for a long time you are sitting here, so aren't you feeling tired? Means आपको tired नहीं लग रहे? तो you can stop it and play with me. Leaning against the tree beside him where Frank was sitting, that there was a tree, so she also leaning down means थोड़ा सा झुक के ट्री के ऊपर. Okay, she was asking to her brother, I want to catch some fish, and to do that I must sit still, answered her brother. That time Frank answered to Rita that I want to catch some fish, so for that I have to sit here. Now come to the next page, 23 page. Now you can see this image that this boy, okay,
His name is Frank and her name is Rita. So how that see, and this river is called stream, small river, where Frank was catching fish, and how the Rita leaning down along the tree. Okay, so now come further. See, Rita knew she must wait for a long time, so she lay down near the stream and wanted to swift flowing water. Sorry, watch the swiftly flowing water. Rita को पता था कि if she would play with Frank, she must wait. And for that she lay down near the stream and watched the swiftly flowing water. Swiftly means मूविंग वाटर. सो इसीलिए रीता ने क्या किया, स्ट्रीम के पास में सो गए और वो वॉच करने लग गए मूविंग वाटर को. आफ्टर सम टाइम शी बिगन टू फील स्लो ड्रोजी मीन्स फीलिंग स्लीपी. कुछ देर बाद रीता वॉज फीलिंग स्लीपी. आफ्टर अ लिटिल वाइल द वाटर बिकम सो क्लियर दैट शी कुड सी राइट थ्रू इट. कुछ देर बाद वो जो वाटर थे स्ट्रीम के वो बहुत ही क्लियर हो गए, मीन्स सच हो गए. एंड नाउ शी कैन ही दैट वाटर वेरी क्लियरली. सून इट बिकम एज क्लियर एज ग्लास. जल्दी ही ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गए लाइक ग्लास की तरह. रीता कुड सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम एंड अ स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट क्विकली. रीता अब क्या सी करते हैं, बॉटम मीन्स एकदम तल बराबर. ओके, नीचे से वो रिवर के नीचे से वो देख सकते थे और देखा कि स्विमिंग फिश स्विमिंग अबाउट क्विकली मीन्स अ स्कूल ऑफ फिश के ग्रुप वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे. देन सी हर्ड लिटिल वॉइसेस कमिंग अप फ्रॉम द वाटर. फिर वो रीता अगेन हर्ड, सुनने के लिए मिला कुछ वॉइसेस, जहाँ कहाँ से आ रहे थे ना, कमिंग फ्रॉम द वाटर. आफ्टर दैट ओके, रीता सॉ a small group of fish speaking very eagerly to one another. Rita again saw a small group of fish. They were speaking. See, you can see here. Yes, they were speaking. वो लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से. She saw that they were looking at the bat that was hanging from the Frank's line. So Frank was, as we know that Frank was catching fish. तो वहाँ से जो bat नीचे means पानी के बराबर थे. सो वो पानी के बराबर जो बैट थे, तो वो लिटिल जो जितने सारे फिश थे वो लोग भी वो बैट के बारे में ही बात कर रहे थे. माई सन सेड द लार्जेस्ट फिश टू वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन. माई सन जो लार्जेस्ट फिश थे, आई होप सी इज द मदर ऑफ द लिटिल फिशेस. ओके, इतने इन लोगों से ये क्या थे, मदर थे. तो सी सेड कि माई सन दैट इज अ ट्रैप. शी वॉज टेलिंग दैट ये ट्रैप है हमको पकड़ने के लिए. आई हैव सीन मैनी पुअर फिश ट्राई टू सोलो दैट वर्म, बट इनसाइड द वर्म देयर इज अ हुक दैट विल कैच यू एंड you will not be able to escape. That mother fish was explaining the little fishes कि my son, वो जो बैट है वो बैट के इनसाइड में एक हुक होते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत ही पोर फिश क्या है उस बैट को खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो पकड़ जाते हैं, फंस हो जाते हैं और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं. और क्या होते हैं, देन द बॉय टू द टॉप विल पुल यू अप एंड टेक यू अवे. और जो बॉय ने उस बैट को फेंका है पानी में, वो बॉय क्या करेंगे, आपको पकड़ लेंगे और पानी से बाहर निकल लेंगे. तो यू विल बी नॉट एबल टू कम बैक अगेन. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, come to the next page, 23rd number page. Okay, but mother, cried the little fish, I want to have just one bite. I am sure that it will not harm me. But little fish ने मदर को चिल्ला के बोला कि मम्मा, आई वांट टू हैव जस्ट वन बाइट, मैं जस्ट एक
बाइट लेना चाहती हो, और आई एम श्योर दैट इट विल नॉट हार्म मी, और इसमें मेरे को कोई हार्म नहीं हो सकते। रीता wanted to call out and tell him that his mother was right, but she was not sure if they would be able to hear it। रीता भी यही बात बताना चाहते थे मदर की तरह कि मम्मा जो आपके बोल रहे हैं कि उसको मत बाइट करो, नहीं तो यू विल बी कैच आउट थ्रू द बॉय एंड यू विल नॉट एबल टू कम आउट। बट वो क्या, रीता वाज नॉट श्योर दैट हर वॉइस विल गो टू द वाटर। ओके, for a few minutes there was silence in the water. Then suddenly the little fish moved forward and tried to swallow the worm. The next moment he was caught in a hook. His mother swam towards him immediately. कुछ मिनट के लिए वहाँ पे बहुत ही शांत थे वाटर में, फिर सडनली वो जो लिटिल फिश थे वो बाइट करने के लिए गया, सोलो करने के लिए गया उस वाम को, और नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज कॉट इन द हुक। हिज मदर स्वैम टूवर्ड्स द हिम इमीडिएटली। जैसे वो सोलो करने के लिए गया बैट को, वो कॉट हो गया, पकड़ में गया, हुक में फंस हो गए, और इसलिए उनके मम्मा उनको हेल्प करने के लिए कम एंड हेल्प सी कॉल्ड इन अ ओरिड वॉइस। बहुत ही ओरिड वॉइस में मीन्स चिंतित वॉइस में, दैट स्मॉलेस्ट फिश शी वाज कॉलिंग to her mother that mama please come and help me। all the other fish surrounded the line and some caught hold of the little fish tails and hold on। Rita got very excited and jumped up from the bank। so जैसे सभी फिश ने, जैसे लिटिल फिश वो हुक में फंस हो गए, तो सभी फिशेस क्या है उनको हेल्प करने के लिए, और रीता शी वाज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी दिस सीन। Rita, I have got a splendid catch. The line is so heavy I can hardly pull it इन एक्सप्लेन फ्रैंक। फिर फ्रैंक लाउडली चिल्लाए कि रीता मैंने एक स्प्लेंडेड कैच मीन्स बहुत एक वेरी गुड फिश को पकड़ लिया है। ओके, सो आई कैन हार्डली पुल इट इन। अभी ये बहुत ही हैवी है बट आई कैन पुल इट अप। Next, what happened? Rita suddenly remember that where she was and realized that she must have fallen asleep। रीता अभी उनको याद आ गया कि वो कहाँ पे थे, वो सो गए थे है ना, beside the stream। and now when she got awaken, that time she realized that where she was। so and that Frank when she loudly क्या called her that time, thinking about her strange dream, and she Rita that time Rita thought it was my dream। क्योंकि वो मछली अगर बातें करते हैं तो वो बात हम सुन पाते हैं क्या, नहीं सुन पाते हैं। हाँ, फिश हम देख सकते हैं in the water, but we could not able to heard any voices from the fishes। yes or no? so it was like a dream, but ये ड्रीम सच हो गया जब फ्रैंक ने एक फिश को पकड़े हैं। She had only stood by him a minute when splash means जब वो पानी का छिटरा आया। द फिशिंग रॉड फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड। जैसे ही वो पानी का ये फ्लैश हो गया तो उसके फ्रैंक के फिशिंग रॉड नीचे गिर गए। द लिटिल फिश जम्प इनटू द वाटर फिर एंड फ्रैंक फेल ऑन द ग्रास विथ अ बिग थम। तो ये क्या हुआ, जैसे वो पानी का स्प्लैश आया फ्रैंक भी नीचे गिर गया पानी का, और जो लिटिल फिश हुक में बंद थे फंस हो गए थे वो भी नीचे वाटर में वापस चले गए। फ्रैंक वाज नॉट हर्ट एंड द साइट वाज सो फनी दैट रीता स्टार्टेड लाफिंग हार्डली। मीन्स ये जो सीन थे, जो सिनारे थे, ये बहुत ही फानी जैसे थे। फ्रैंक सी यू कैन सी हियर, फ्रैंक नीचे गिर गए, ये जो स्मॉल फिश थे वो भी पानी के अंदर चले गए। हाँ, फ्रैंक को कुछ चोट नहीं लगा बट रीता सॉ अ वेरी
funny moment. You are laughing, Frank said when he got up again. Frank was saying that you are laughing, आप हंस you means हंस रहे हो और अब मेरे को चोट लग सकते थे. But that was the best fish I have ever caught. The splendid fish must have got off the hook. He was telling the ये बहुत ही एक very good fish थे जो मैंने पकड़ लिए थे, है ना. So Rita began to think quietly. वो छुप छुप मीन्स सोचने लग गया. कौन? रीता. कुड हर ड्रीम हैव बीन ट्रू. ये ड्रीम उनके सपना अगर सच हो जाते, है ना. इट रियली डिड सीन स्ट्रेंज. ये बहुत ही आश्चर्यजनक है. एंड ऑल दो सी फेल्ट सॉरी फॉर फ्रैंक. और जब मीन्स वो फ्रैंक के लिए सॉरी भी महसूस किया. शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग वेरी प्लीज्ड दैट द पोर लिटिल फिश हैड गॉट आवे. वो उसके लिए प्लीज्ड बहुत ही हो गया कि जो वो पोर फिश थे, है ना, जो हुक में फंस गए थे, फ्रैंक के हुक में, वो बाहर चले गए. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर. व्हाट वाज द ड्रीम अबाउट, हु हैड सीन दैट ड्रीम, yes or no. Now you read this chapter again and again and understand about it. Thank you very much. Have a good day.